हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे। पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा, लेकिन पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, environment and natural resources. You know that is important. Environment and natural resources here, class 12 CBSE NCERT political science here. Next topic arrive here, that is important, and topic here important, India has a contribute in environmental protection. You know that's important. India has a contribute in a environmental protection here. That's an important point here. India is one of the few countries in the world was the constitutional have to special mention of environment. You know that's important. The India is one of the few countries in the world was the constitution have a special mention of environment. India has a enacted extensive of environmental law, and our policy reflect India as a initiative in environmental protection. Depth all the environment related bill, the environmental situation in India remain very serious. You know that's important. Environmental situation in India remains very serious. India has also contributed through the various program for environmental protection. That's the next point that's important. India has also contributed through the various program for the environmental protection here. You know that the India is the most important role here of environment protection. First of all here, 2002 sign and the approval of Kyoto Protocol. India has a sign 2002 Kyoto Protocol here. And second, in the meeting of G8 countries in 2005, emphasis was laid on the reduction of greenhouse gas emission by the development country. That's the most important step for the India here. And use of clean fuel in a vehicle under the national auto fuel policy. You know that's the most important here policy here. The use of clean fuel in a vehicle under the national auto fuel policy. Next year, Energy Conservation Act passed in 2001. India has a Energy Conservation Act passed in 2001. That's important. In 2003, the use of renewable energy was promoted in the Electricity Act. You know that India is the most important step taking here. On 2003, the use of renewable energy was promoted in Electricity Act. And work on the national emission related to the biodiesel is going on the India. That's the most important take a step here. And also India is want to be build a
consensus on the protection of their environmental by all the nations at the SHARC platform. There's a most important mention here, SHARC platform. India want to build a consensus on the protection here of the environment. The next year, National Green Tribunal means NGT. NGT is a National Green Tribunal. It was an important program here. Was established in 2010. The India, there is a established in the 2010 for the protection and conservation of environment in India. You know that's the most important NGT here. India is the first country in the world where there is a separate ministry for the development of renewable energy. That's an important step for taking the India here. There is a first country in the world there where is there a separate ministry for the development of renewable energy. Low per capita contribution in a carbon dioxide emission, America 60 ton, Japan 8 ton, China 0.6 ton, and India is here 1.28 ton. You know that's important. The low per capita contribution in carbon dioxide emission, America is 60 tons, Japan is 8 ton, and China 6 ton. But India here contribute a 1.38 ton. That's important. India has signed the Paris Agreement on 2 October 2016. That's the most important agreement here. And by 2030, India has set a target to reduce the emission intensity by the 33 to 35% as a compare to 2005. That's important step for taking the India here. The intensity by the 33 to 35 as a compare to 2005. The target is reduced here. That's important. In a COP means COP is 23. India has a COP is 23. India will achieve 2.5 million hectare by 2030 through the tree plantation and increasing the forest area. It has been promised to create a sink equivalent to 5 to 3 million ton of carbon dioxide. That is important here for the exam view. यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। कक्षा 12वीं CBSE NCERT के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल साइंस यानी देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का जो हमारा अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की योगदान की तरफ बात कर रहा है। आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान यानी पर्यावरण जो नष्ट हो रही है इसमें भारत का क्या योगदान है, भारत ने इसके प्रति कौन कौन से जो है अपना कदम उठाया है, तो इसके प्रति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण भारत का क्या योगदान रहा। भारत संसद ने उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधान में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। देखा जाए तो भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण का उल्लेख किया है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाती है कि ऐसे देश जो है पर्यावरण के संरक्षक हो सकती हैं जिन्होंने अपने संविधान में ही पर्यावरण के बारे में उल्लेख किया है। भारत ने पर्यावरण कानून का व्यापक निर्माण भी किया गया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण भारत की पहल भी दर्शाती है। देखा जाए तो भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियों का अनुसरण किया है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। और देखा जाए तो पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख है, भारत ने इस पर कानून भी बनाए हैं और देखा जाए तो भारत में ही पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अब इस बातों से क्या बात सामने आता है, यहाँ पर सामने यही बात आती है कि भारत ने बेशकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण का जगह दिया हो या अपने कानून में व्यापक स्तर पर इसका स्थान दिया हो, लेकिन भारत में सिर्फ नाम मात्र का ही होता है। कहते हैं दोस्तों भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि कानून तो बनती है
लेकिन उसमें अमल नहीं की जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी इसी का एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन देखा जाए तो आज सिर्फ जब पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, तो बड़े बड़े लोग सिर्फ झाड़ू लेके रोडों पर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। लेकिन उनका मन में कभी भी इसके प्रति सम्मान नहीं रहा है। और ये मैं साफ कह दूं, तभी तो यह बात साफ होता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। साथ में इसमें बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। और भारत ने जो है कीटो प्रोटोकॉल पर भी साइन किया था 2002 में। फिर भी देखा जाए तो आज भी भारत में पर्यावरण की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और भारत में जितने पोल्यूशन है उतना शायद किसी विश्व देश में नहीं होगा। भारत में अगर आप सड़कों रोडों से बाहर निकल जाएं तो आपको पर्यावरण दूषित ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत बहुत से कानून हैं, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो पा रहा है। उसके पश्चात देखें तो भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपना योगदान जरूर दिया है। भारत के देखा जाए संविधान से लेके कानून में जो है पर्यावरण सुरक्षा के बहुत से कार्यक्रम मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना, कार्यक्रम सिर्फ नाम मात्र का है। जब तक कार्यक्रम को जो है प्रवान न चढ़ाया जाए तब तक वो कार्यक्रम ही रहता है। जैसे देखा जाए तो 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए और उनका अनुमोदन भी भारत सरकार ने किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था। इवन हम देखें तो 2005 में भी जब G8 सम्मेलन हो रही थी, इस बैठक में विकसित देशों द्वारा जा रही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया गया था और इसमें भारत ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे भी यानी G8 में सभी देशों के समक्ष पर्यावरण की समस्याओं को समक्ष रखा था। लेकिन देखा जाए तो वही बात हो जाती है कि अपना घर में बुराई है, हम फिर भी दुनिया में अच्छाई की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें अपने आप को भी सुरक्षित करने की ज़रूरत है। जो पर्यावरण दूषित हो रही है उससे बचने की ज़रूरत है। देखा जाए तो आगे देखें तो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी की जो है गठन की है और इसके अंतर्गत देखा जाए तो वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने का प्रावधान भी किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, ये कदम से कम ये तो होगा कि लोग अनजाने में ही पर्यावरण के संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखा जाए तो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया भारत सरकार द्वारा। यानी 2001 में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम थी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण पे एक अलग सा कदम उठाया जाए। इवन हम देखिए तो 2003 में बिजली अधिनियम में नवकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को काफ़ी बढ़ावा दिया गया और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार के द्वारा। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है, जो आने वाला समय में प्रमाण चढ़ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में बायोडीजल जो उपयोग की जाने वाली है और इसका एक अलग ही मिशन है, वो अगर कामयाब हो गया तो शायद हम पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत और सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। यानी भारत का एक महत्वपूर्ण विचारधारा ये है कि सार्क सम्मेलन जो होती है उसमें पूरे विश्व के समक्ष एक मत बनाने की बात रखी गई है। अगर एक राय बन जाता है तो मुश्किल से देखा जाए तो ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन बात बने तब ना, अगर सार्क में मंच पर ये बात बन जाती है तो पर्यावरण को एक नया ही रुख मिल जाएगी। उसके पश्चात देखें तो भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना की गई। देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, जिसको भारत में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित की गई। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत सुरक्षा की भावना जो है विकसित की गई। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम था भारत सरकार का। देखा जाए अगले पॉइंट पे बात करें तो भारत विश्व का पहला देश है जहाँ पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। शायद ऐसा कोई देश हो जहाँ पर अलग से ऊर्जा के लिए जो है मंत्रालय बनाया गया हो।
लेकिन देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता है। सिर्फ भारत ही विश्व का पहला देश है जहां पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल की जो है एक विभाग बनाई गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान, यानी भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान है। यानी देखा जाए तो अमेरिका जो है 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वही जापान जो है 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, चीन 6 टन। लेकिन भारत का यहाँ पर देखिए सबसे कम है 1.38 टन। यानी देखा जाए तो अमेरिका सबसे आगे है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो है गलत कदम है जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा स्थिति जो है भारत का ही है, जहाँ पर 1.38 टन ही जो है ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। देखा जाए तो भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के लिए कि भारत को जब भी मौका मिलता है अच्छे कार्य के लिए तो हमेशा हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहता है, वो भी पर्यावरण के अंतर्गत। इन्हीं कारणों से भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 में हस्ताक्षर किए थे पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। इवन आगे देखिए तो 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 और 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर लक्ष्य रखी गई है कि 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हो सकता है। इवन देखें तो कोप यानी COP23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक जो है 2.5 से लेके 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर सिंक बनाने का वादा किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ भारत के लिए बहुत ही कोशिश किया जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। अगर भारत सरकार के हर एक व्यक्ति ने सहयोग दिया तो हो सकता है कि आने वाला समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत जो है नंबर 1 बन सके। और देखा जाए तो इन सब बातों से तो पता लगता है कि भारत इसमें जो है हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन जो विकसित देश हैं वो गंभीर नहीं है। और कहते हैं गंभीर बनाना पड़ेगा, ऐसे देशों को गंभीर बनाना पड़ेगा जो अब तक गंभीर नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भारत इतना अच्छा कदम उठा सकता है इसके अंतर्गत तो क्या विश्व स्तर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक और दुख की बात है कि भारत ने इतना कदम तो उठाए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषित जो है देशों में भारत का नाम आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिनके कारण भारत जो है दिन प्रतिदिन प्रदूषित देशों में गिनतियों में सबसे ऊपर पैदान पे आता चला जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और भारत सरकार को इसमें मंथन करने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो रहेगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो पॉइंट व्यू रहेगा, और वो भी आपके लिए बहुत काफ़ी महत्व रखेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, दूसरे बच्चे तक पहुँचाएँ, क्योंकि शेयर ही केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, और यहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध है। तो इसलिए सोचना नहीं है दोस्तों, विचार ना करना है, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव करना है।